पिछले वीडियो में हमने बात की थी रूमेटिक फीवर क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है। अरे रूमेटिक फीवर क्या है और उसका इटियोलॉजी क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा। आज हम जानेंगे उसका पैथोजेनेसिस क्या है, क्लिनिकल फीचर क्या है, लेबोरेटरी फीचर क्या है, डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे और मैनेजमेंट क्या है। तो पहला हम देखेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मिमिक्री, स्ट्रेप्टोकोकाई सुपर एंटीजन एंड होस्ट फैक्टर। ત્રણ મુદ્દામાં हम बात करेंगे। मॉलिक्यूलर मिमिक्री, the streptococci induced autoimmune is believed to be mechanism result in rheumatic process. Several streptococci antigen have demonstrated cross reactivity with cardiac and other tissue. मॉलिक्यूलर मिमिक्री मतलब कि स्ट्रेप्टोकोकाई की जो ऑटो इम्यून डिजीज है वो कैसे होता है, तो वो मिमिक करेगा कार्डियक और अदर टिश्यू, मॉलिक्यूलर मिमिक्री करेगा, उसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी। स्ट्रेप्टोकोकाई सुपर एंटीजन आर यूनिक ग्रुप ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस बाय बैक्टीरिया एंड वायरस दैट कैन बी रीच क्लास 2 मेजर histocompatibility complex molecular to specific T cell receptor stimulating antigen binding. The T cell are activated to release the cytokine or become cytotoxin. This can become the autoreactive. Some of the super antigen on streptococci induce the M protein fragment and pyrogenic exotoxin that may be a role of the pathogenesis of the rheumatic fever. Super antigen may also stimulate B lymphocytes. Streptococci erythrogenic toxin may behave like a super antigen for B, leading to produce of the एंटीटोरिएक्टिव एंटीबॉडीज। मतलब कि इसमें क्या है, सुपर एंटीजन बनाएगा। और हम जानेंगे कि होस्ट फैक्टर, तीसरा टॉपिक क्या है इसमें, तो होस्ट फैक्टर ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेप्टोकोकाई एंटीजन मीडिएटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द rheumatic fever only in susceptible host. 0.3 to 3% individual with acute streptococcal pharyngitis go on develop the rheumatic fever. In India, HLA-DR3 is present molecular frequency in the rheumatic fever patient. Also, Indian with the rheumatic fever have low frequency of the HLA-DR2. और अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर क्या है, क्लिनिकल फीचर में होगा द शॉर्ट थ्रोट होगा पहला, only 2/3 of the patient remember having any upper respiratory symptom in the past 1 to 5 weeks. Polyarthritis most commonly involve joint as a large joint extremity. Polyarthritis मतलब inflammation of the joints, hips and small joint, hands and feet are affected occasionally. Carditis, feature of the carditis develop early and occur 40 to 50% of the cases. Rheumatic fever may involve the endocardium, myocardium and pericardium, resulting in pericarditis. Pericarditis ना manifestation શું હશે, tachycardia હશે, drop beats હશે, third sound, fourth heart sound, summation gallop થશે ના fetal or tic-tac quality heart sound, arrhythmia થશે, एंडोकार्डियाटिस में सिस्टोलिक मर्मर थશે, मिट्रल रिगर्जिटेशन थશે, बेसरली डायस्टोलिक मर्मर थશે, पेरिकार्डियाटिस में पेरिकार्डियम पेन थશે, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन ड्रॉप थશે, पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन थશે। આપણે જોયું કે પહેલો તો શોર્ટ થ્રોટ, પોલીઆર્થરાઇટિસ, કાર્ડિયાટિસ। હવે આપણે જોઈશે સબક્યુટેનસ નોડ્યુલ। The subcutaneous nodule are usually associated with severe carditis 10 to several weeks in its onset. Pea-sized painless nodule over the bony prominence पर दिखेगा, हमें bony prominence पर pea-sized painless nodule दिखेगा। एरिथेमा मार्जिनेटम
एक्यूट रूमेटिक फीवर में एरिथेमस पिंक रैशेस विथ क्लियर सेंटर राउंड सर्विजियस मार्जिन, मतलब कि एरिथेमा मार्जिनेटम भी इसमें होगा। कोरिया में कोरिया यूजुअली अपीयर आफ्टर द लॉन्ग लेटेंट पीरियड आफ्टर द इनिशियल स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन। It occurs to 15% of the attack of the acute rheumatic fever. Common between age of the 7 to 14. It is rare after puberty. Chorea is characterized by the sudden, aimless, irregular movement associated with muscle weakness, emotional instability, obsession, compulsion, tic and psychotic features. Other क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आगे फीवर आएगी, एब्डोमिनल पेन होगा, एपिस्टैक्सिस होगा, ये सब होगा। लेबोरेटरी फीचर में क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ द ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकाई। ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकाई में आइसोलेटेड बाय द थ्रोट कल्चर ओनली इन अ माइनॉरिटी ऑफ द केस एंड सीरोलॉजी टेस्ट आर प्रीफर। स्ट्रेप्टोकोकाई एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट में कौन कौन सी है? एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, एंटी-DNSB, एंटी-हाइलुरोनिडेज, एंटी-स्ट्रेप्टोजाइम, ये सब टेस्ट होगी। एक्यूट फेज रिएक्टिव में ESR होगा, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सी रिएक्टिव प्रोटीन होगा, ये सब हम करेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे। चेस्ट रेडियोग्राफी में कार्डियोमेगाली पल्मोनरी कंजेशन से ત્યારે चेस्ट रेडियोग्राफ करसो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करसो। डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? डायग्नोसिस हम रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया के हिसाब से बनाएंगे। रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया क्या है? लो रिस्क मेजर क्राइटेरिया ना माइनर क्राइटेरिया, ऐसे दो होते हैं। तो लो रिस्क पॉपुलेशन, कार्डियाइटिस, आर्थराइटिस, कोरिया, एरिथेमा मार्जिनल, सबक्यूटेनियस नोड्यूल, ये होगा लो रिस्क पॉपुलेशन में मेजर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया में लो रिस्क पॉपुलेशन, पॉलीआर्थराइटिस फीवर 38.5 सेल्सियस के बराबर होगा। ESR 16 mm/h होगा। प्रोलॉन्ग PR इंटरवल होगा। ये होगा माइनर क्राइटेरिया लो रिस्क पॉपुलेशन। मेजर क्राइटेरिया हाई रिस्क पॉपुलेशन, कार्डियाइटिस, आर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, एरिथेमा मार्जिनेटम, सबक्यूटेनियस नोड्यूल, ये होगा हाई रिस्क पॉपुलेशन में मेजर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया हाई रिस्क पॉपुलेशन, मोनोआर्थराइटिस फीवर 38 सेल्सियस से ज़्यादा होगा। ESR 30 mm/h से ज़्यादा होगा। प्रोलॉन्ग PR इंटरवल होगा। अब हम जानेंगे उसका मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट यानी कि हम उसको कैसे मैनेज करेंगे पूरे डिजीज़ को। तो बेड रेस्ट लेना है पेशेंट को। एंटी स्ट्रेप्टोकोकाई थेरापी देनी है रेजिमेन। सिंगल इंजेक्शन ऑफ द बेंजाथिन पेनिसिलिन 1.2 मिलियन यूनिट इंट्रामस्कुलर बराबर है। और प्रोलैक्टिन पेनिसिलिन भी दे सकते हैं। डेली इंजेक्शन ऑफ द प्रोलैक्टिन पेनिसिलिन 6 लाख यूनिट इंट्रामस्कुलर फॉर 10 days। ओरल एरिथ्रोमाइसिन 20 to 40 mg per kg per day in 3 divided dose। erythromycin dose 500 mg once for a 5 day patient who are sensitive to penicillin। सैलिसाइलेट हम ले सकते हैं, एस्पिरिन दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, प्रेडनिसोलोन हो गया, ये दे सकते हैं। सपोर्टिव थेरापी में हम हार्ट ब्लॉक, कोरिया, हार्ट फेलियर, वाल्वुलर लेशन, ये सब को ट्रीट करेंगे। थैंक यू।